بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں سلما کوثر۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ قومی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وسائل اور صلاحیتوں کے باوجود قرض کے چنگل میں جکڑے ہوئے ہیں۔ بلو اکانومی ترقی اور خوشحالی کا زینہ ہے۔ گوادر بندرگاہ علاقائی تجارت کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ دہشت گردی سے پاکستان نے بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا ہے۔ اس افریت کو ہر صورت شکست دینی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں نیشنل میری ٹائم ورک شاپ سے خطاب۔ ملک معاشی استحکام کی راہ پر گامزن، حکومت کی دانشمندانہ حکمت عملی سے مہنگائی 6 سال کی کم ترین سطح پر، زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم، سٹاک مارکیٹ تاریخی بلندی پر، عوامی فلاح اور معاشی بحالی کے لیے ثابت قدمی سے آگے بڑھ رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف۔ سٹاک مارکیٹ میں مسلسل تیزی، ہر دن نیا ریکارڈ، انڈیکس میں 814 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ 1,09,053 کی بلند ترین سطح پر بند، 57 ارب روپے سے زائد کے 1 ارب 69 کروڑ 76 لاکھ شیئرز کا کاروبار۔ پنجاب حکومت کا ایک اور عوام دوست منصوبہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فری سولر پینل سکیم کا افتتاح کر دیا۔ 1 لاکھ سولر سسٹم لگانے کا ہدف، ماہانہ 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو 1100 واٹ، جبکہ 100 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو 550 واٹ کا سولر سسٹم مفت دیا جائے گا۔ شہری SMS اور آن لائن پورٹل کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں۔ منصوبے کا مقصد عوام کو مہنگی بجلی سے مستقل ریلیف دینا ہے۔ صوبے کے وسائل عوام پر ہی خرچ ہوں گے، وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ معاشی ترقی میں نجی شعبے کا کلیدی کردار، کاروبار دوست ماحول کی فراہمی اور سرمایہ کاری میں اضافہ حکومت کی اہم ترجیح۔ پائیدار نمو کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ضروری، ڈھانچہ جاتی اصلاحات کا عمل جاری رہے گا۔ مالیاتی مسائل کے دیر پا حل کے لیے مصروف عمل ہے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی صدارت میں اجلاس، اقتصادی راہداری کے تحت منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ شرکاء کو توانائی، انفراسٹرکچر، زراعت کے شعبوں میں منصوبوں اور خصوصی اقتصادی زون سے متعلق بریفنگ۔ وفاقی وزیر کی NHA کو چینی شراکت داروں کے ساتھ مل کر بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے منصوبوں کو بروقت مکمل کرنا ہے، وزیر منصوبہ بندی۔ خیبر پختونخوا حکومت عوامی مسائل کے حل کے بجائے انتہا پسندانہ سیاست میں مصروف۔ صوبے کے عوام کا پیسہ ریلیف کی فراہمی پر خرچ ہونا چاہیے۔ کل جماعتی کانفرنس میں عدم شرکت خیبر پختونخوا حکومت کے غیر سنجیدہ رویے کی عکاسی کرتی ہے۔ سیاسی قوتوں کے درمیان بات چیت درپیش چیلنجز سے نمٹنے کا مؤثر حل ہے۔ کچھ عناصر نوجوانوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، صوبائی حکومت انتظامی صلاحیتوں سے محروم ہے۔ یہ لوگ سٹیٹس اور کرسی کو ہی کافی سمجھتے ہیں، ایگزیکٹو صوبہ چلانے کا اہل نہیں۔ صورتحال کے تناظر میں گورنر کو کل جماعتی کانفرنس بلانا پڑی۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان۔ £190 ملین کیس، بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کا ملزمہ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ ملزمان کی جانب سے 342 کے بیانات آج بھی جمع نہ کرائے گئے۔ آئندہ سماعت 9 دسمبر کو ہوگی۔ اسلام آباد میں پرتشدد احتجاج میں ملوث عناصر کے خلاف ایکشن۔ PTI کے مزید 19 شرپسند انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 دن کی توسیع۔ سوشل میڈیا پر ملک دشمن پروپیگنڈے میں ملوث افراد کے خلاف بھی کارروائیاں تیز۔
इंतशार और फसाद की सियासत, मुल्क दुश्मनी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कौमी सलामती और मुल्की वकार के लिए इदारों के शाना बशाना है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान, सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बानी PTI का माइंड सेट है कि सब मेरे हुक्म पर चले। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी का कहना है कि मजहब कार्ड, साइफर कार्ड के बाद अब PTI माफी कार्ड खेल रही है। की जो मौत है वो कौम की हयात है। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। मियानी साहिब लाहौर में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल राव इमरान सरताज की मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए और दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। शहीद के अजीज़ व अकारिब और शहरियों की भी बड़ी तादाद में हाज़री। वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत और अस्करी क़यादत का निडर सपूत मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खिराजे अकीदत। इसराइल की दहशतगर्दी, सिहोनी फौज ने तमाम हदें पार कर दी। गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर बमबारी, क़यामत सुगरा के मनासिर, 29 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल गजा में जंगी जराइम का मुर्तकब। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 300 सफ़हात की रिपोर्ट जारी कर दी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल की लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। शाम में जारी कशीदगी में इजाफा, जंगजुओं और शामी फौज में शदीद झड़पें। मुसल्लह ग्रुपों की हमस शहर की तरफ पेशकदमी। 2,80,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। शामी फौज की जंगजुओं के ठिकानों पर बमबारी। सूरत हाल पर गौर के लिए तुर्किया, ईरान और रूस के वज़राए ख़ारजा की कल दोहा में मुलाकात शेड्यूल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, काले कवानीन के तहत अमलाक की जब्तगी। श्रीनगर, शोपियां और बारामूला में मकामी अफराद की मजीद अमलाक जब्त। भारतीय हुकूमत के 9 आबादियाती इक़दाम तहरीक आज़ादी को कमज़ोर नहीं कर सकते। हुर्रियत क़यादत की आबादी का तनासुब तब्दील करने की मज़मूम कोशिशों की शदीद मज़म्मत। शहर इक़्तिदार में गुले दाऊदी की नुमाइश, इस्लामाबाद की खूबसूरती को मजीद निखार दिया। 250 से ज़ायद इक़साम के फूल नुमाइश का हिस्सा। शहरियों की खुसूसी दिलचस्पी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड का एक और इजलास कल मुतवक्के। इवेंट के शेड्यूल को हातमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सख्त मौक़िफ़, भारतीय क्रिकेट बोर्ड दबाव का शिकार। मामलात बराबरी की सतह पर हल होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का 2 टोक मौक़िफ़। और इस्लामाबाद में कौमी रोइंग चैंपियनशिप का आगाज। पहले रोज आर्मी 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त, बहरिया की दूसरी और वापडा की तीसरी पोजीशन। इवेंट 8 दिसंबर तक जारी रहेगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें।
तफसील शामिल करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान वसाइल और सलाहियतों के बावजूद कर्जों में जकड़ा है। तरक्की के लिए हमें माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए यकसुई के साथ इक़दाम उठाना होंगे। लाहौर में 7वीं नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की खुशहाली में अहम किरदार अदा कर सकती है। तफसील उमर फारूक से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। कर्जों से निजात और तरक्की के लिए हमें माजी की गलतियों से सबक सीख कर अपने हकीकी काम पर तवज्जो देनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि कराची पोर्ट ट्रस्ट को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तेज तरीन लोडिंग और अनलोडिंग पर तवज्जो देना है। हमें समंदरी वसाइल से इस्तेफादा के लिए इकदाम करना होंगे। Blue economy is the name of the game around the globe. I think it's high time. I'm prepared to provide all sorts of help in this behalf, because there lies Pakistan's economic stability and Pakistan's progress and prosperity. Everything is available in this country. Infinite natural resources, they run into trillions of dollars. And on the other hand, we are borrowing loans from brotherly countries, friendly countries, day in and day out. That's not the way. We have to discard this course. We have to unite our efforts. We have to team our efforts, move forward. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक बहरिया समंदरी वसाइल से इस्तेफादे के लिए इकदामात कर रही है। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया चैलेंजेस से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है, जबकि दोस्त मुल्क चीन भी बहरी शोबे में ताउन के लिए तैयार है। I know that Pakistan Navy is already focusing in exploring our potentials in blue economy, but they've already had an initial investigation through Chinese companies. They are ready to send another delegation to further enhance and explore what is lying under deep water. Gwadar Port, in promoting our not only economic interests, but also promoting Pakistan's outstanding skills in shipbuilding, and also make this port a very robust commercial port. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के इफरीत से पाकिस्तान में 80,000 लोग शहीद हुए और मईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मुल्क में फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे ताकि अवाम अपनी सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा कर सके। It is a iron resolve of the government of Pakistan, along with armed forces and all law enforcing agencies, to fight this menace of terrorism with full commitment. Huge sacrifices have been given by Pakistani soldiers, officers, ordinary citizens, doctors, engineers, mothers and children. There cannot be a bigger manifestation or commitment of Pakistan to fight terrorism and completely defeat it, rather erase it from the face of Pakistan. We are fighting, and we will not rest until this menace is again defeated and pushed out of borders of Pakistan for all time to come. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए हमें मौसर इक़दामात के जरिए आगे बढ़ना है और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत अवामी फलाह बहबूद और माशी बहाली के अज़्म पर साबित कदम है। मुल्क माशी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की दानिशमंदाना हिकमत अमली के नतीजे में महंगाई 78 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं और स्टॉक मार्केट तारीख साज बुलंदियों को छू रही है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी रही। 100 इंडेक्स 814 पॉइंट्स के इजाफे के बाद पहली मरतबा 1,09,000 की हद उबूर करते हुए 1,09,053 पर बंद हुआ। तफसील ज़मीर अब्बास की रिपोर्ट में। स्टॉक मार्केट ने आज भी अपने तेजी के सिलसिले को बरकरार रखा। सिर्फ 7 रोज के अंदर स्टॉक मार्केट ने 9,781 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया, जो सरमायाकारों का हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद का मजहर है। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1239 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,09,478 पर भी पहुंची। माहिरीन का कहना है कि हुकूमती काविशों के बायस
मुल्क के तमाम मुआशी अशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी नजर आ रही है। मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी है, हम मेच्योर पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसके समरात हमें नजर आ रहे हैं हमारी इकोनॉमी पे। कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिजर्व के नंबर शो किए, जिसमें $12 बिलियन से ज़्यादा हमारे रिजर्व पहुंच चुके हैं, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। हम साथ साथ देख रहे हैं करंट अकाउंट भी सरप्लस आने वाला है, मुसलसल 4 माह हो गए। रिफ्लेक्शन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स दिखा रहा है, हर रोज़ मार्केट अपने नए हाई को टच कर रही है, लिक्विडिटी कंटिन्यू पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आ रही है। हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि जितने म्यूचुअल फंड हैं या इंश्योरेंस सेक्टर है, उसकी जानिब से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बाइंग देखने में आ रही है। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 468 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 233 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 200 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 35 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज बाजार हिस्स में 57 अरब 48 करोड़ रुपए की लागत के 4,98,000 सौदे हुए, जिनका हजम 1 अरब 69 करोड़ से जायद रहा। आज मार्केट में टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, सीमेंट, टेक्सटाइल, कमर्शियल बैंक्स, फार्मास्यूटिकल और केमिकल्स की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखने में आई। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आला पंजाब का आवाम के लिए एक और तोहफा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 1 लाख सार्फिन के लिए सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के सार्फिन SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। इस बारे में तफसील जानते हैं वर्दा सलीम से। आवाम को मुआशी रिलीफ देने और उन्हें बिजली के बिलों से निजात दिलाने के लिए तवानाई के मुतबादल जराये को फरोग देना नागुज़ीर है। इस मकसद के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ फ्री सोलर पैनल स्कीम का फैसला किया गया, जिसका बाकायदा आगाज कर दिया गया है। स्कीम के तहत 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि आवाम के वसाइल अवामी रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। फ्री सोलर पैनल स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। इस हवाले से सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि आने वाले मौसम गर्मा से पहले मतलूबा शराइत पर पूरा उतरने वाले तमाम सार्फिन को सोलर फराहम कर दिया जाएगा। 100 यूनिट जो महाना है सर्फ करने वाले जो सार्फिन है उनको 550 वॉट का जो सोलर सिस्टम है वो मुफ्त दिया जाएगा, और जो 200 यूनिट वाले हैं उनको 1100 वॉट का। पंजाब के सार्फिन जो है वो आज SMS जो है उसके ऊपर और ऑनलाइन पोर्टल पर जो है वो इसको अप्लाई करेंगे। सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम में शफाफियत के लिए कंप्यूटराइज कुरानदाजी की जाएगी। सार्फिन की मावनत और रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन भी कायम की जाएगी। सोलर पैनल और इन्वर्टर को चोरी से बचाने के लिए सारिफ के कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक किया जाएगा। पंजाब में 1 लाख सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने से 57,000 टन कार्बन का अखराज कम होगा। फ्री सोलर पैनल स्कीम से वफाकी हुकूमत पर भी सब्सिडी का बोझ कम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से फ्री सोलर पैनल स्कीम की फरहामी अवाम दोस्त इक़दाम है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है मालियाती मसाइल का हल मुनज़्ज़म और देरपा होना चाहिए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर कर्ज दहिंदगान की अदायगी की सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए इक़दामात करे। तफसील मोहम्मद फैसल राव से। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में कर्जों के हवाले से स्टेक होल्डर से मुशावरत के लिए मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कारोबारी इदारों को दिवालिया होने से बचाने के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम करना होगा। कर्जों की फराहमी के लिए मौसर, देरपा और पायदार निज़ाम बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो कर्ज दहिंदगान की अदायगी की सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए इक़दामात करें। That we are not going to go back into the era of directed lending. बिल्कुल गलत किया हमने जो उस वक्त किया. That is not the way how you actually go and lend to the priority sectors. And housing is indeed a priority sector. पर उसके लिए जो हमें काम करने की ज़रूरत है, and what we need to do as the government is to ensure there is a regulatory authority. That's been a long-standing demand of the industry. This is going to be an enabling framework, enabling environment in terms of access to credit, access to finance, but also when anyone gets into trouble, how are we going to ensure that that is done in a systematic way? Ministry of Finance will keep a very light touch. You don't want government to be dictating and certainly not be leading. So we will host it, but it's the private sector. It's the private sector which will lead this.
So that is my only plea to you. SECP के चेयरमैन आकिफ सईद ने कहा कि मईशत और कारोबार में इस्लाहात की जरूरत रहती है। कर्जों की वसूली के साथ साथ कर्ज दहिंदगान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि बैंकिंग कोर्ट्स मालियाती कर्जों के मामलात में अहम किरदार अदा करती हैं। अदलिया ने कर्जों की वसूली के मामलात में मजबूत मिसालें कायम की हैं, जिससे न सिर्फ कर्ज दहिंदगान को तहफ़्फ़ुज़ मिला बल्कि मुलाजमीन और कंपनियों की बहाली को भी यकीनी बनाया गया। वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे ने कहा कि कर्जों से मुतालिक पेचीदगियों और उनके हल के लिए जदीद तरीकाकार को अपनाना होगा, जिससे न सिर्फ मईशत मजबूत होगी बल्कि सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल होगा। आखिर में पैनल डिस्कशन के दरमियान माहिरीन ने कर्जों की अदायगी और वसूली के हवाले से अपनी तजावीज दी। मोहम्मद फैसल राव, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। और बिजली की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपया 14 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई है। बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक दिसंबर के बिलों में होगा। वजीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी ने कहा कि हुकूमत आवाम के लिए बिजली को मजीद सस्ता बनाने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी अरब की जानिब से डिपॉजिट में 1 साल की तौसी से पाकिस्तान को न सिर्फ कर्जों की अदायगी में रिलीफ मिलेगा बल्कि इससे ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने में भी मदद मिलेगी। तफसील सादिक बलोच से। सऊदी अरब का शुमार पाकिस्तान के उन दोस्त मुमालिक में होता है जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। बिरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब ने न सिर्फ सफारती बल्कि मुआशी शोबे में भी पाकिस्तान से तामुन किया है। मुख्तलिफ शोबों में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी, मुअख्खर अदायगियों पर तेल की फराहमी और 3 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट्स पाक सऊदी मजबूत ताल्लुकात के अकास हैं। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखने के लिए 3 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखे, जिनकी मुद्दत 2 मरतबा की तौसी के बाद 5 दिसंबर 2024 को ख़त्म हो रही थी, जिनको सऊदी अरब ने 1 मरतबा फिर बढ़ा दिया है। बहुत ही आसान इकदाम है जो सऊदी गवर्नमेंट का, जो रोल ओवर उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो उनकी थी उन्होंने उसके ऊपर किया, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है ऐसी सपोर्ट जो कि हमेशा सऊदी अरब ने दी। और सऊदी अरब जो है हमेशा पाकिस्तान का एक साथी रहा है और उसने हमेशा पाकिस्तान की मुईशत में एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया है। तो इस मरतबा ऐसे हालात में मैं अप्रिशिएट करता हूँ और गवर्नमेंट भी कि उनकी एफर्ट से जो है ये सारा रोल ओवर हुआ जी। बैरूनी कर्जों के हवाले से सऊदी अरब की जानिब से तौसी मिलना एक अहम पेशरफ्त है, जिससे पाकिस्तान को कर्जों की वापसी के मामले में सहूलत मिली है और ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखने में भी मदद मिलेगी। इस तौसी से पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे और इससे हमारे जहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे, वहीं हमारे सऊदी अरब के साथ जो दरीना ताल्लुकात हैं और जो मुनासब हैं उन पर भी मोहर लगेगी। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान का जो लोन था 1 साल के लिए रोल ओवर कर दिया, जो 3 अरब डॉलर का था। इससे पाकिस्तान में बड़ा माशी इस्तेकाम आएगा। पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया और पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत करते हैं। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने और तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए दोस्त मुल्कों से तामुन हासिल करने समेत हर मुमकिन इकदामात उठाए हैं। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत CPEC पर पेशरफ्त इजलास में तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत और खुसूसी इक़्तिसादी जोन समेत मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा लिया गया। वफाकी वजीर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को चीनी शराकतदारों के साथ ताउन तेज करने की हिदायत की। इजलास में ज़राअत के शोबे में 1000 पाकिस्तानी फारिग तहसील तलबा की चीन में तरबियत की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। एहसन इकबाल ने कहा कि मुंतखब तलबा पाकिस्तान के ज़रई शोबे को जदीद बनाने में मुआवन साबित होंगे। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा है कि बलूचिस्तान वस्त एशिया के ममालिक को मिलाने वाला एक गेटवे है। अगर यहाँ इंडस्ट्रियल जोन कायम करेंगे तो सरहदी तिजारत से अवाम खुशहाल होंगे। मेहमान सनत और तिजारत कोयटा में ताजिर बिरादरी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की कोशिश है कि ताजिर बिरादरी को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम की जाएँ। हुकूमत बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत ये पहली दफ़ा एक ऐसी कमेटी बनाई गई है कि जो इन पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे ये जोन हैं उनका जायज़ा लें कि जी हमें यहाँ क्या क्या देना है। लेकिन बलूचिस्तान की एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शंस और आसान हैं। इन चीज़ों ने बढ़ना है और बेहतर होना है।
बलूचिस्तान एक ट्रांजिट पोटेंशियल बहुत बड़ा है और वो ट्रांजिट पोटेंशियल उस वक्त बेहतर होगा जब यहाँ के लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा किया और तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने मुद्दत से पहले प्रोजेक्ट की तकमील के लिए CDA को टास्क दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की मुकर्रर करदा मुद्दत में तकमील यकीनी बनाने के लिए खुद निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट 10 माह की बजाय 3 माह में बनेगा। इस मेगा प्रोजेक्ट की तकमील से ट्रैफिक के मसाइल का मुस्तकिल हल हो सकेगा। सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट के तहत 2 अंडरपास राब्ता सड़कें बन रही हैं। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की तामीराती काम के दौरान मुतबादिल ट्रैफिक प्लान पर मिनोआन अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कॉफ़ी तुर्किया सकाफत का एक अहम हिस्सा है जो दुनिया भर में तुर्किश कॉफ़ी के नाम से मशहूर है। तुर्किया के यौम कॉफ़ी की मुनासबत से PTV इस्लामाबाद सेंटर में खुसूसी तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने टर्किश कॉफ़ी को न सिर्फ पसंद किया बल्कि PTV में ये दिन हर साल मनाने का ऐलान भी किया। तुर्किश कॉफ़ी डे पर पाकिस्तान टेलीविजन में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी इस कॉफ़ी को ट्राई करने के लिए पहुंचे। वज़ीर इत्तलात को ये कॉफ़ी इस कदर पसंद आई कि उन्होंने हर साल PTV में ये कॉफ़ी का दिन मनाने का ऐलान कर दिया और आज तो तुर्किश कॉफ़ी डे भी मनाया जा रहा है। पाकिस्तान टेलीविजन ने खास तौर पर तुर्किश कॉफ़ी का एहतमाम किया। What Pak-Turk friendship means to us, it is unique in nature, it is deep-rooted not only in history but in culture and religion. It's become an integral part of our lives, and we would like to express our gratitude to you for all that Turkey has done over the years for Pakistan. And today we stand here as brothers to take this friendship forward and to bestow upon the future generations. तुर्किश कॉफ़ी को रवायती तरीकों, खास कप, बगैर चीनी और कई मराहिल से गुजार कर तैयार किया जाता है। The coffee is a very strong part of Turkish culture. Coffee with someone, it's a special relations, not like other drinks. So you must respect each other, you must take care of each other for many years. हमारे पाकिस्तान और तुर्की के कल्चरल ताल्लुकात बहुत रवाबत भी है, कल्चरल ताल्लुकात भी है, हमारे एक दूसरे से बहुत नज़दीक है हम लोग, और ये हम चाहते हैं कि जो यहाँ नहीं है उसको पाकिस्तान में तारफ़ कराएं। हम लोग नहीं जानते, तुर्क लोग आमतौर पर नहीं जानते, उनको तुर्की में यानी दोनों के दरमियान में ब्रिज होने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्रेटरी इत्तलात और MD PTV अमरीन जान का कहना था कि कॉफ़ी तो मिल बैठने का एक बहाना था और हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात ऐसे ही खूबसूरत लम्हात के साथ मजबूत से मजबूत तर होते रहें। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PTV दानियाल किलानी, डायरेक्टर न्यूज़ हारून इलाही तूर और GM PTV न्यूज़ सेंटर आमिर बशीर भी मौजूद थे। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सियासी क़ुव्वतों के दरमियान मुकालमा सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का हल तलाश करने का मौसर जरिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने का खैर मकदम करते हुए एक्स पर अपने पैगाम में उनका कहना था कि ये बदकिस्मती की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सूबाई हुकूमत अवाम की खिदमत के बजाय अपनी इंतहापसंद सियासत में मसरूफ़ है और इसका खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमती पार्टी को APC में शिरकत की दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम के हकीकी हुकूक के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि सूबे में बरसर इक़्तिदार जमात सिर्फ कुर्सी पर बैठने को काफ़ी समझती है, जबकि इनके पास ना इंतज़ामी सलाहियतें हैं और ना ही कोई नज़रियाती बुनियाद। सूबे में तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई रिट नहीं है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सोचते क्या है। और मेरे ख्याल में वो शायद बस कुर्सी पर बैठने को काफ़ी समझते हैं कि हमें एक स्टेटस मिल गया है, और इस स्टेटस से आगे सोच ही नहीं है, न इंतज़ामी सलाहियतें हैं, न कोई नज़रियाती सलाहियतें हैं, न क़याम अमन के लिए कोई पेशरफ्त है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्यों गवर्नर को इजलास बुलाना पड़ा। ये तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियां हैं, और एग्जीक्यूटिव जो है वो इस सलाहियत से महरूम है।
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ مردان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ صرف نعروں اور دعووں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تفصیل جانتے ہیں عدنان شاہ سے۔ مردان میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے گورنر فیصل کریم کنڈے نے آل پارٹیز کانفرنس کو کامیاب قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک جماعت کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں نے کانفرنس میں شرکت کی، حالانکہ اعلامیہ کے زیادہ تر نکات صوبائی حکومت کے حق میں ہیں۔ 14 پوائنٹ جو تھے اس میں سے 11 پوائنٹ صوبائی حکومت کے حق میں تھے، ان کا مقدمہ ہم نے لڑا۔ اگر کل رائلٹی کے پیسے ملتے ہیں تو کس کے پاس جائیں گے؟ صوبائی حکومت کے پاس جائیں گے۔ اگر ہم اپنے آبی اس کے پانی کی بات کرتے ہیں، بجلی کی بات کرتے ہیں، گیس کی بات کرتے ہیں، اپنے وسائل کی بات کرتے ہیں، اگر تمباکو کے ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو پیسے تو ان کو ملنے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں چاہتے کہ امن کی کانفرنس ہو، اگر انتشار ہو تو یہ بات کرتے ہیں، اگر ہم صوبائی حقوق کی بات کریں کہتے ہیں ہمیں پیسے نہ ملیں۔ اس سے پہلے گورنر نے یونا اسٹیڈیم مردان میں آل پاکستان فٹ بال چیلنج کپ کے فائنل میں شرکت کی اور فاتح ٹیم ثوابی کی کپتان کو وننگ ٹرافی پیش کی۔ انہوں نے صوبے میں گورنر فٹ بال کپ کے جلد آغاز کا اعلان بھی کیا۔ عدنان شاہ، پی ٹی وی نیوز، مردان۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف جاری 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کیس کی کارروائی بشرا بی بی کی غیر حاضری کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر آگے نہ بڑھ سکی۔ اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کیس کی سماعت کی۔ بشرا بی بی عدالت پیش نہ ہوئی۔ 342 کے سوال نامہ کے جوابات آج بھی داخل نہیں کروائے گئے۔ بشرا بی بی کے وکیل نے ملزمہ کی جگہ پلیڈر کو پیش کرنے کی استدعا کی، تاہم پروسیکیوٹر کا اعتراض تھا کہ قانون کے مطابق پلیڈر کی حاضری کے لیے بشرا بی بی کا عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کی وجہ سے گزشتہ 12 سماعتوں کے بعد بھی 342 کے سوال نامے کے جوابات داخل نہیں کروائے گئے۔ عدالت نے بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھتے ہوئے سماعت 9 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ڈی چوک پر احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے کیس میں پی ٹی آئی کارکنان کے جسمانی ریمانڈ میں 3 دن کی توسیع کر دی ہے۔ تھانہ سیکریٹریٹ میں درج مقدمے میں 19 گرفتار ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کے سامنے پیش کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے گرفتار ملزمان کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روز کی توسیع کرتے ہوئے انہیں پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ اس سے قبل پولیس ملزمان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز اور جھوٹے بیانات پر مزید 7 ملزمان کے خلاف ایف آئی آرز درج کر لی گئی ہیں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے شرپسندوں میں محمد سہیل، محمد جنید، شیخ محمد احسان، طارق جمیل، سید رضوان، محمد احمد اور بابر عظیم شامل ہیں۔ ملزمان مختلف واٹس ایپ گروپس اور ایکس اکاؤنٹس کے ذریعے ریاست مخالف نفرت انگیز پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے۔ ملزمان کو جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ گزشتہ ماہ اسلام آباد میں احتجاج کے لیے آنے والے پی ٹی آئی کارکنوں کے شکار ہیڈ کانسٹیبل یاسر محمود نے کہا ہے کہ مظاہرے میں شامل شرپسندوں نے پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ میرا نام یاسر محمود ہے اور بطور ہیڈ کانسٹیبل تھانہ حضور میں تعینات ہوں۔ 24 نومبر کو لا اینڈ آرڈر ڈیوٹی کے سلسلے میں میری ڈیوٹی غازی پور تھانہ پل پر تھی۔ رات کو مظاہرین نے ہم پر حملہ کیا اور ہیوی مشینری کا استعمال کرتے ہوئے پولیس سے کنٹینرز اٹھائے اور شیلنگ اور پتھراؤ کرتے ہوئے ہماری طرف آئے۔ شدید شیلنگ کی وجہ سے اور پتھراؤ کی وجہ سے میری حالت غیر ہو گئی اور میں مظاہرین کے قابو آ گیا، جس پر انہوں نے مجھ پر تشدد کیا اور مجھے پل سے نیچے گرا دیا۔ نیچے سرس روڈ پر گرا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے ریسکیو کر کے اسپتال شفٹ کیا گیا۔ ہوش میں آنے پر معلوم ہوا کہ میرے بازو اور کولے کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے۔ میں ابھی تک چلنے پھرنے سے قاصر ہوں۔ ڈی پی او صاحب کے تعاون سے میرا علاج جاری ہے۔ انشاءاللہ جلد سے یاب ہو کر میں اسی جذبے سے اپنے فرائض سر انجام دیتا رہوں گا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ سمیت 5 مقدمات میں گرفتار ملزمان پر 13 دسمبر کو فرد جرم عائد کرے گی۔ ملزمان میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید سمیت دیگر شامل ہیں۔ دوران سماعت شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ سمیت دیگر کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کو چالان کی کاپیاں تقسیم کرنے کی ہدایت کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے کیس کی سماعت کی۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ شیخوپورہ ضمنی الیکشن میں نون لیگ نے تاریخی فتح حاصل کی ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ ہر وقت واویلا کرنے والی فتنہ فساد پارٹی کو اپنی مقبولیت کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے وکاس بھٹی سے۔
لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ عوام نے پاکستان کے اداروں کے خلاف بیانیے کو مسترد کیا، جبکہ نون لیگ کی پالیسیوں اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کو ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب پنجاب سے لوگوں کو فساد کی کال دی گئی تو اسے عوام نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مذہب کارڈ، پھر پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کا کارڈ اور سائفر کارڈ استعمال کیا گیا، لیکن پاکستان کو آپ سے معافی کا کارڈ درکار ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ آج بھی یہ بات طے ہے کہ نون لیگ پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ فتنہ فساد کی پارٹی کو اس پارٹی کے ہوتے ہوئے پنجاب کا نہ بھلا جب یہ حکومت میں تھے تب ہوا بزدار کی شکل میں، اور نہ اب آگے ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو پاکستان کے اداروں کے خلاف ایک بیانیہ ہے اس کو مسترد کیا گیا ہے۔ وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے اوورسیز کو ریمیٹنسز نہ بھیجیں، تو ریمیٹنسز ان کے گھروں میں جاتی ہیں نا، ان کو نہ بھیجیں۔ وہ فاقے اپنے پاکستانیوں کو وہ فاقے مروانا چاہتا ہے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 30,000 بچوں کو اسکالرشپ دیے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے ہاتھوں میں اسکالرشپ دی جانی چاہیے، نہ کہ کلو والے ڈنڈے۔ ہونہار اسکالرشپ پروگرام جو ہے 68,000 طلبہ جو ہے انہوں نے درخواستیں دی تھی، جس کے اندر 65 یونیورسٹیز سے، 359 کالجز سے اور 12 میڈیکل کالجز کے ان بچوں نے جو بچے اپنی فیس جن کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے، ان بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا جو موقع چیف منسٹر صاحبہ نے دیا ہے، یہ حکومتی بھی یقیناً ایک کارکردگی اور کام تو ہے ہی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ میری وزیر اعلیٰ نے کوئی بھی منصوبہ صرف فائلوں اور نعروں کے لیے نہیں بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چائنا سے واپسی پر سولر ٹیوب ویلز کا بھی افتتاح کریں گی۔ وکاس بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ عدالتوں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں شرجیل میمن نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی خواہش ہے ججز ان کی خواہش پر فیصلے کریں، لیکن ججز کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ آئین و قانون پر چلتے ہیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن کے لیے بلائی گئی اے پی سی میں پی ٹی آئی کا شرکت نہ کرنا افسوسناک ہے۔ تحریک انصاف کی پرائرٹی صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان میں انارکی پھیلائی جائے، پاکستان میں افراتفری پھیلائی جائے، پاکستان میں جو ہے اداروں کے خلاف جنگ کی جائے، پاکستان میں حکومتوں کے خلاف جنگ کی جائے، حالات خراب کیے جائیں، 9 میں جیسے واقعات کیے جائیں، پی ٹی وی کو آگ لگائی جائے، ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی جائے، پارلیمنٹ کو آگ لگائی جائے، افراتفری پھیلائی جائے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت آج منایا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کی جرأت و بہادری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لاہور میں شہید کے مزار پر ہونے والی تقریب کا احوال جانتے ہیں نوید حیات سے۔ میجر شبیر شریف شہید کا یوم شہادت افواج پاکستان کی مادر وطن کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا منظر ہے۔ نشان حیدر اور ستارہ جرأت حاصل کرنے والے قوم کے اس عظیم سپوت نے 2 جنگوں میں بہادری اور شجاعت کی تاریخ رقم کی۔ لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں میجر شبیر شریف شہید کے یوم شہادت کے موقع پر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب ہوئی، جس میں جنرل آفیسر کمانڈنگ لاہور گیریزن میجر جنرل راؤ عمران سرتاج نے شہید کے مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ تقریب میں شہید کی ہمشیرہ نجمی آپا اور قریبی رشتہ داروں سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحانی کی۔ اس موقع پر پاک فوج کے چاکو چوبندستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہید کی ہمشیرہ نے کہا کہ وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جوانوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ شبیر کی بہادری کی تو پہلے سے داستان موجود تھی، 65 کی جنگ میں جس طرح وہ لڑا، اور ہمیں یہ تھا کہ وہ ضرور 71 کی بھی جنگ میں بھی کوئی نہ کوئی ضرور کارنامہ ضرور انجام دے گا، کہ اس کی یاد کو ہمیشہ ہمیں اپنے دل میں تازہ رکھنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو بھی، ہمارے جو جوان ہیں ان کو بھی جس بھی فیلڈ میں ہیں ان کو بھی وہ محنت اور کمٹمنٹ اور لگن سے کام کرنا چاہیے، اور اس ملک کی عزت اور بقا کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ میجر جنرل ریٹائر غازی دین رانا اور لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر غلام صفدر خان نے کہا کہ شبیر جیسے سپاہی اور لیڈر بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی بہادری کی داستانیں وہ بہت لمبی ہیں، اور ہماری جو آئندہ نسلیں ہیں آفیسرز اور جوان، ان کے لیے ایک مشعل راہ اور ایک نمونہ ہے جو کہ وہ فالو کرے۔ میجر شبیر شریف کی جرأت اور بہادری ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تعداد نہیں بلکہ ایمان، لگن اور ہمت قوموں کو فتح سے ہمکنار کرتی ہے۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔
बनू में उलमाए कराम की ग्रैंड अमन जिरगे ने फितनातुल खवारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का मुकम्मल साथ देने का ऐलान किया है। शुरका ने पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज और उनके शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। शुरका ने शरपसंद अनासिर की रोकथाम के सिलसिले में हुकाम को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मेजर जनरल जुल्फ़िकार अली भट्टी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग कोहाट ने बतौर मेहमान खुसूसी जिरगे में शिरकत की। उलमा और मशाइख़ कराम ने इलाके में तालीम, सेहत, खुसूसन बच्चियों की तालीम के हवाले से की जाने वाली काविशों पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कुछ अनासिर नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक करना चाहते हैं, हम ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। लियारी में इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम और सिंध पिंक फुटबॉल चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि नौजवानों को मौके फराहम करना जरूरी है। तफसील जानते हैं सैयद जहांगीर अली की रिपोर्ट में। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इंतहा पसंद कुव्वतें आज भी नौजवानों को गुमराह कर रही हैं, जबकि नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए इन्हें मौके फराहम करना जरूरी है। सब जानते हैं कि इस मुल्क के मुस्तकबिल इस मुल्क के नौजवान हैं। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं, चाहे वो मजहबी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो लिसानी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो सियासी इंतहा पसंदी हो। वो हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करना चाहते हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं। मैं अपने नौजवानों को खेलते हुए, पढ़ते हुए, रोजगार करते हुए देखना चाहता हूं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की खवातीन भी सलाहियतों में किसी से कम नहीं और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में खवातीन को मौके फराहम करना हमारी तरजीह है ताकि मुल्क की तरक्की में अपना मस्बत किरदार अदा कर सकें। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि लियारी के लिए जदीद फुटबॉल स्टेडियम का तोहफा देने पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा करते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वज़ीर खेल मोहम्मद बख्श महर ने कहा कि सबसे ज्यादा खेलों की सहूलियात सूबे सिंध में है और हम बीच गेम्स, विंटर गेम्स और दीगर खेलों के फरोग के लिए इकदामात उठा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फुटबॉल मैच देखा। सिंध पिंक वुमेन फुटबॉल टूर्नामेंट में सूबे के मुख्तलिफ अजला की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुसलसल 14 माह से इसराइली फोर्सेस की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। गजा में वजारत सेहत के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फोर्सेस के हमलों में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद और 95 ज़ख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा के कमाल उद्वान हस्पताल पर इसराइल ने बमबारी की, जिसमें तिब्बी अमले और मरीजों समेत 29 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए। हस्पताल में अफरा तफरी के बाइस डॉक्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमलों की वजह से तिब्बी अमला और मरीज महसूर होकर रह गए हैं। काबिज फोर्सेस ने रफा पर फ़ज़ाई हमले किए, जिसमें मुतादिद अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में काबिज फोर्सेस की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। खान यूनिस में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से रेड क्रेसेंट सोसाइटी का कारकुन भी शहीद हुआ। मगरबी किनारे के इलाके नाबलूस में काबिज फौज ने घर घर तलाशी की कार्रवाई के दौरान फायरिंग से 1 फ़लस्तीनी शहीद कर दिया। तिलकरम में छापों के दौरान 4 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने खबरदार किया है कि शदीद सर्द मौसम और फिर मुसलसल बमबारी ने बेघर फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। बयान में कहा गया है कि बेघर फ़लस्तीनियों की काबिल रहम हालत पर आलमी बिरादरी फौरी तौर पर तवज्जो दे। गजा में जंगबंदी से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मज़ीद 2 करारदादें जमा करा दी गई हैं। करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मुस्तकिल नुमाइंदे ने जमा कराई हैं। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के माहिदे के बावजूद इसराइली हमले जारी हैं। जारह फ़ौज के ताज़ा हमले में 5 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइली तैयारों ने लेबनान शाम के सरहदी इलाके जोसिया पर भी बमबारी की है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज इंतज़ामिया ने जारी तहरीक आज़ादी की हिमायत की पादाश में काले कवानीन के तहत कश्मीरियों की अमलाक की जब्तगी का सिलसिला तेज कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर, शोपियां और बारामूला अजला में मजीद 4 अफराद की जायदादें जब्त कर ली गईं। भारतीय पुलिस ने जिला शोपियां में मोहम्मद शफी डार और अब्दुल मजीद के 2 रिहायशी मकान जब्त किए, जबकि जिला बारामूला में मोहम्मद सुभान खान का मकान
और 16 मरले अराजी जब्त कर ली गई। भारतीय पुलिस ने श्रीनगर के इलाके छानापुरा में मुदस्सिर अहमद वानी नामी शहरी को गिरफ्तार करने के अलावा उनकी 2 गाड़ियां जब्त कर ली। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा इलाके में जायदादों की जब्ती की मजम्मत करते हुए इसे नौ आबादियाती इकदाम करार दिया है। भारतीय फोर्सेज ने जिला कुलगाम में तलाशी ऑपरेशन के दौरान मंजूर अहमद और अल्ताफ अहमद नामी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। जिला डोडा में एक शख्स मोहम्मद इरफान को काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। दूसरी जानिब भारतीय इंतजामिया ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक को आज एक बार फिर श्रीनगर में घर में नजरबंद करके उन्हें नमाज जुमा की अदायगी के लिए जामे मस्जिद जाने से रोक दिया। अंजुमन औकाफ श्रीनगर जामे मस्जिद ने मीर वाइस की फिर से नजरबंदी की शदीद मसम्मत करते हुए इसे दीनी मामलात में सरी मुदाखलत करार दिया है। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों बाबरी मस्जिद की शहादत को 32 साल मुकम्मल हो गए हैं, जबकि मुसलमान आज भी इंसाफ के तलबगार हैं। हमला करने वालों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से था। इंतहा पसंदों ने कुल्हाड़ियों, हथौड़ों और दीगर औजारों से बाबरी मस्जिद को निशाना बनाया, जिसके खिलाफ मुसलमानों की तरफ से शदीद एहतजाज और मज़ाहमत की गई। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भारत में फसादात शुरू हो गए, जिसके नतीजे में 2000 से ज़ायद मुसलमान शहीद और हज़ारों ज़ख्मी हुए। बीजेपी रहनुमा LK अडवाणी और मनोहर जोशी ने मजमे को बाबरी मस्जिद शहीद करने के लिए इश्तियाल दिलाया। भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह मलोए कृष्णा के मुताबिक बाबरी मस्जिद की शहादत का मंसूबा बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने बनाया था। 2009 में जस्टिस मनमोहन सिंह की तहकीकाती रिपोर्ट में बीजेपी रहनुमाओं समेत 68 लोगों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया, जबकि ठोस शवाहिद के बावजूद 9 नवंबर 2019 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्वस तमाम मुल्ज़िमान बरी कर दिए और यकतरफा तौर पर मुतराज़ ज़मीन राम मंदिर की तामीर के लिए हिंदुओं को दे दी। हैरान कुन बात यह है कि अदालत ने खुद अपने फैसले में तस्लीम किया कि मस्जिद की तामीर के लिए किसी मंदिर को नहीं तोड़ा गया और करार दिया कि 1949 में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखना और 1992 में मस्जिद को ढाना गैर कानूनी अमल था। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बीजेपी की लोकसभा में सीटें 121 से बढ़कर 188 हो गईं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक बाबरी मस्जिद की बेहुरमती बैनुल-अक़वामी उसूलों के मनाफी और अक़लियतों के मजहबी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी थी। 1992 से अब तक सिर्फ भारतीय रियासत गुजरात में 500 मसाजिद और मज़ारात गिराए जा चुके हैं। 16वीं सदी में तामीर होने वाली बाबरी मस्जिद मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने तामीर कराई थी। मोदी सरकार का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट बुरी तरह नाकाम। 2014 में शुरू किए जाने वाले मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हुकूमत के गले का फंदा बन गया। इस्लाहात के बावजूद दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को मुश्किलात का सामना है। भारतीय फजाइया में MiG-21 तैयारे वुड मेकर फ्लाइंग कॉफिन के नाम से शनाख्त बनते जा रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में भारत अब तक मौलिक हथियारों के निज़ाम की तैयारी के लिए किसी बड़े मुश्तरका मंसूबे का ऐलान नहीं कर सका। दर हकीकत मोदी सरकार का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट असलहे की पैदावार में नाकाम हो चुका है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज और कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के माबैन इस्लामाबाद में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए, जिसका मकसद पॉलिसी के ज़रिए असर तहकीक और मुकालमे को फ़रोग देना और जम्मू कश्मीर तनाज़े के हवाले से आलमी सतह पर आगाही में इजाफा करना है। मुकर्रीन ने कहा कि ये बात समझाना ज़रूरी है कि मसला कश्मीर सरजमीन के बारे में नहीं बल्कि बुनियादी तौर पर हक़ खुदरादियत के बारे में है। कश्मीर की तारीख़ी, अखलाकी और कानूनी बुनियादें मुस्तहकम और नाकाबिले तरदीद हैं। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। इस दौरान जनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है।
کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سپورٹس بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں قومی روئنگ چیمپئن شپ کے پہلے روز آرمی کی ٹیم 5 سونے اور 1 چاندی کے تمغوں کے ساتھ سر فہرست رہی. نیوی کو 1 گولڈ اور 2 سلور میڈلز کے ساتھ دوسری اور وابڈا کو 3 چاندی اور 3 کانسی کے تمغوں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل رہی. مزید تفصیل جانتے ہیں ذیشان قیوم کی اس رپورٹ میں. کھیلوں کے حوالے سے اہم سنگ میل قومی روئنگ چیمپئن شپ کا راول لیک اسلام آباد میں ہو گیا ہے آغاز. 3 روزہ چیمپئن شپ میں مجموعی طور پر 14 مقابلے ہو رہے ہیں جن میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہیں. پہلے روز مردوں کے لائٹ ویٹ سنگل سکل میں آرمی نے گولڈ، نیوی نے سلور اور وابڈا نے برونز میڈل حاصل کیا. ویمنز لائٹ ویٹ سنگل سکل میں آرمی نے طلائی، وابڈا نے چاندی اور پنجاب نے کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا. اس چیمپئن شپ کا یہی مقصد ہے کہ ہم نئے بچوں کو موقع ملے گا اور نئے بچے سامنے آئیں گے. ابھی میں سنگل سکل کا ایونٹ بھی کھیل کے آؤں اور بچوں کی بہت زیادہ بھرپور تیاری ہے. الحمدللہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. بہت شکر گزار ہیں ہم. تو اسی طرح یہ امپروو اگر ہوتی رہی تو انشاءاللہ ہم باہر سے بھی جو ہے نا وہ اچھا رزلٹ دیں گے. اس طرح کے اگر ایونٹ فیڈریشن کرواتی رہے تو انشاءاللہ بہت بچوں کو فیسلٹی ملے گی کھیلنے کی. مردوں کے لائٹ ویٹ ڈبل سکل میں آرمی نے سونے، نیوی نے چاندی اور وابڈا نے کانسی کا تمغہ سینے پر سجایا. ویمنز لائٹ ویٹ ڈبل سکل میں بھی گولڈ میڈل آرمی کے حصے میں آیا. وابڈا نے سلور اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے برونز میڈل حاصل کیا. مردوں کے لائٹ ویٹ 4 میں نیوی نے طلائی، آرمی نے چاندی اور وابڈا نے کانسی کا تمغہ جیت لیا. روئنگ ایک چیلنجنگ گیم ہے جس میں کامیابی کے لیے ایک کھلاڑی نہیں پوری ٹیم کی محنت درکار ہوتی ہے. ذیشان قیوم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راول لیک، اسلام آباد. اور اب کچھ بات کرتے ہیں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول کو کل حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق آئی سی سی بورڈ کا اجلاس کل منعقد ہو سکتا ہے جس میں چیمپئنز ٹرافی کے معاملات پر بات چیت ہوگی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے سخت موقف کے باعث بھارتی کرکٹ بورڈ دباؤ کا شکار ہے. پی سی بی پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ معاملات برابری کی سطح پر حل ہوں گے. اگر بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان میں نہیں کھیل سکتی تو پاکستانی ٹیم بھی بھارت جا کر نہیں کھیلے گی. ذرائع کے مطابق معاملات فیوژن یا پارٹنرشپ فارمولے کے تحت آگے بڑھ سکتے ہیں جس میں پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے ملک میں کوئی ایونٹ نہیں کھیلیں گے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی فروری مارچ میں پاکستان کی میزبانی میں کھیلی جائے گی. زمبابوے کے خلاف سیریز کھیلنے کے بعد قومی کرکٹ ٹیم بلاوایو سے جنوبی افریقہ کے لیے روانہ ہو گئی ہے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 T20، 3 ون ڈے اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے. کپتان محمد رضوان، بابر اعظم اور شاہین شاہ افریدی ٹیم کو ڈربن میں جوائن کریں گے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا آغاز 10 دسمبر سے ڈربن میں T20 میچ سے ہوگا. نویں تھل جیپ ڈیزرٹ ریلی کے کامیاب ڈرائیورز کی حوصلہ افزائی کے لیے اسلام آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. وفاقی وزیر جام کمال تقریب کے مہمان خصوصی تھے. طارق فضل چودھری اور راجہ خرم نواز سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی. نویں تھل ڈیزرٹ ریلی کو دھند کے باعث مختصر کیا گیا تھا تاہم شرکاء کے جذبے اور لگن کی وجہ سے ایونٹ کامیاب رہا. 5 ٹیموں پر مشتمل چیمپئنز T20 کپ کا کل سے راولپنڈی میں آغاز ہو رہا ہے. پہلا میچ نورپور لائنز اور UMT مارکوز کے درمیان کھیلا جائے گا. دوسرے میچ میں لیک سٹی پینتھرز اور ABL سٹالینز کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. ٹورنامنٹ میں مجموعی طور پر 22 میچز کھیلے جائیں گے. فائنل 25 دسمبر کو ہوگا. کوالیفائر اور فائنل کے علاوہ تمام میچز میں پریمیم انکلوجر میں شائقین کا داخلہ مفت ہوگا. چیمپئنز T20 کا PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جائے گا. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. رضوان رونق اور سلمان کوثر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.